This And conference will guys, now be recorded. मैं आप सभी को बता चुका था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड की क्लाउड क्या है। तो क्लाउड के अंदर मैंने आप सभी को बताया था क्लाउड इज द नेम ऑफ द सर्विस क्लाउड जो है वो एक सर्विस का नाम है एंड दिस सर्विस प्रोवाइड बाय मल्टीपल दिस सर्विस प्रोवाइड बाय मल्टीपल CLO क्लाउड such as AWS, Azure, GCP, IBM, VMware, Oracle, Alibaba, etc. When anyone use cloud service resources such as virtual server, storages, databases, and any other service of cloud service providers pay as per the usage. Got it the point, everyone? Now the cloud is the name of the service, and this service provided by the multiple cloud service providers such as AWS, Azure, GCP, IBM, VMware, Oracle, Alibaba, etc. And when anyone use cloud service resources such as virtual servers, storages, databases, and any other services of cloud service providers pay as per the usage. Got it, everyone? Yes. So I'm also prepare a PPT. तो मैं PPT भी बनाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं PPT भी बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं PPT भी बनाने वाला हूँ। सो गुड मॉर्निंग। तो PPT के साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये जो भी अब थ्योरी लिखवाऊँ आपको, इस बैच में मैं काफ़ी डिटेल में थ्योरी लिखवाने वाला हूँ, तो मैं उसके नोट्स भी अब प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो नाउ guys, the next point is कि second point, so I'm explain you in a second point कि this is a what is cloud. Now cloud parameters, they are CLOUD, cloud key points. गाइस क्लाउड की पॉइंट्स की बात हम करते हैं तो वो पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा क्लाउड में यूज करे यार। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो क्लाउड के जो की पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नाउ दीज आर द की पॉइंट्स जो क्लाउड में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और जो सारे के सारे की पॉइंट्स हम आज ही पढ़ेंगे इन अ वन गो। द पॉइंट नंबर 1 is zone, second is region, zone, IAM, key pair, security group, then your VPC, and one more thing is volume.
So guys, this is the key points. Reason, Jones, IAM, key pair, security group, VPC, and volume ना करके हम यहाँ पे कर देते हैं. Is it a instance type? Instance types. So now the what is the reason? If I'm talking about a reason, तो रीजन की अगर मैं बात करता हूँ क्लाउड के अंदर, तो क्लाउड में रीजन क्या है? Reason in a cloud, yeah, cloud service provider used multiple reason. So yeah guys, when you use any cloud, so हर cloud service provider क्या करता है? Multiple reasons use करता है, and this reasons is a physical location of cloud service provider data centers. Got it? This reason is a physical location of cloud service providers data centers. The cloud service providers deploy or create reason in 23 plus location, such as Mumbai, Australia, Canada, Singapore, etc. Got it? The cloud service provider used multiple reasons. This reason is a physical location of cloud service provider data centers. Cloud service providers data centers. Cloud service provider deploy or create a region in 23 plus locations such as Mumbai, Australia, Canada, Singapore, US, Paris, Milan. So there's an n number of countries, n number of locations is available. चंदन भाई अपना माइक ऑफ कर लो यार. When anyone deploy server, storages, databases, and any other service in cloud, first it select service provider such as AWS, Azure, GCP. Then it selects reason. Got it the point? So when anyone deploy server, storage, database, and any other service in cloud, first select in a service provider. Got it? First it select service provider such as AWS, Azure, and GCP. Like I deploy a cloud in which location, you can select a service provider. Then it select a region and deploy resource. Then deploy resource. Got it the point, everyone? By default,
by default reasons not connected with each other, but we can do. बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी रीजंस हैं वो आपस में क्या है, कनेक्टेड नहीं है, बट हम उनकी कनेक्टिविटी करा सकते हैं. व्हेन यू प्रोवाइड connections between reasons, when you provide a connections between reasons, use VPC pairing connection service of cloud. VPC pairing connection service of AWS cloud. या अदर वर्ड इज लुक लाइक द पेयरिंग कनेक्शन सर्विस. तो अगर आप पेयरिंग कनेक्शन सर्विस की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेयरिंग कनेक्शन सर्विस की मैं बात करता हूँ. सो पेयरिंग कनेक्शन सर्विस का मतलब है चाहे आप क्लाउड के अंदर AWS क्लाउड यूज कर रहे हैं, चाहे आप अजूरे क्लाउड यूज कर रहे हैं, चाहे GCP एनी क्लाउड, अगर आप किसी भी क्लाउड में डिफरेंट रीजंस को कम्युनिकेट कराएंगे तो आपको पेयरिंग कनेक्शन सर्विस यूज करनी पड़ेगी. पेयरिंग होता है पेयरिंग होता है PARR. यार नहीं वो नहीं, PARR यानी PARR पेयरिंग. पेयरिंग ही होता है ना, PAI यार कोई नहीं, ING pairing. बट ये स्पेलिंग शायद वहां पे नहीं है. द यूज पेयरिंग कनेक्शन सर्विस ऑफ AWS क्लाउड. हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कोई नहीं. यूज, तो मैं यहाँ पे गाइस VPC कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों का AWS क्लाउड है, तो VPC पेयरिंग कनेक्शन सर्विस ऑन AWS क्लाउड. ये तो बाय डिफॉल्ट द विद इन रीजन व्हेन यू डिप्लॉय any resource in within reason, it's connected with each other. अगर आप सेम रीजन के अंदर कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय करते हो, लाइक यू क्रिएट अ टू सर्वर इन अ डिफरेंट रीजन, दैट मींस इट्स नॉट कनेक्टेड. अगर आप उनको कनेक्ट कराना चाहते हैं तो यू यूज पेयरिंग कनेक्शन. बट अगर हम बात करते हैं विद इन रीजन की, लाइक मैं कहता हूं इंडिया ही है और इंडिया के अंदर ही आप दो सर्वर्स बनाना चाहते हैं, so when you deploy any resource in within region is connected with each other with the help of AWS default VPC network. AWS एक VPC बना के रखता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने रिसोर्सेज को विद इन रीजन्स कम्युनिकेट करा सकते हो. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ गाइस द नेक्स्ट ऑप्शन इज कमिंग कि लाइक अगर हम बात करते हैं कि दिस इज माय अकाउंट, दिस इज माय क्लाउड अकाउंट, और इन दिस अकाउंट there is a multiple reasons is available, n number of reason is available, there is 23 plus reasons is available, like Mumbai region, like US region,
like Australia region. Now, key cloud service provider use a multiple regions such as Mumbai, US, Australia. The reason is a physically location of cloud service provider data center look like जिस तरीके से अगर आपको होटल्स में कोई रूम बुक करना है तो होटल्स ऑलरेडी बने हुए हैं. इसी तरीके से अगर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है, बना हुआ है, जस्ट आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना है. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डिप्लॉय और क्रिएट अ रीजन इन 23 प्लस लोकेशन, यानी कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने रीजन डिप्लॉय करे हैं वो 23 प्लस लोकेशन, यानी 20 पहले 21 था, उससे भी ज्यादा लोकेशंस पे जैसे जैसे नीड बढ़ती आ रही है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने रीजन्स भी एक्सटेंड करते आ रहे हैं. When anyone deploys server, storage, database and any other service in cloud, first it selects service provider. Like I'm using a service provider is AWS. मैंने सबसे पहले कर लिया AWS. Service providers such as AWS, Azure, GCP. Then it select the region. Like I'm deploy my infrastructure in Mumbai region, and then deploy a resources, and now I'm deploy a server. Got in my point? तो अगर आप कोई भी चीज डिप्लॉय करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है, सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है, देन रीजन सेलेक्ट करना है, और देन अपनी रिसोर्स सेलेक्ट करनी है कि क्या रिसोर्स आप उस पर्टिकुलर रीजन में डिप्लॉय करना चाहते हैं. आइदर यू डिप्लॉय नेटवर्क सर्विसेज, आइदर यू डिप्लॉय एनी अदर, जो भी सर्विसेज हैं क्लाउड की आप कोई भी सर्विस कर सकते हो. By default, region is not connected with each other. Like you can deploy a one server in this location, is like a server A is available in a US region and a server B is available in Australia location. This server is not connected with each other. So that means this region is not connected with each other. By default, the between region there is no any connections. So by default region is not connected with each other, but we can do. आपके रीजन्स के बीच में किसी टाइप्स की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, बट अगर आप अपने डिफरेंट रीजन्स को कम्युनिकेट कराना चाहते हो, व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशंस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स या बिटवीन रीजन्स, इनेबल पेयरिंग. इनेबल पेयरिंग. So with the help of pairing आप क्या कर सकते हो, अपने different regions को communicate करा सकते हो. Now when you deploy any resource in within region, अगर मैं बात करता हूँ within region, like this is a server 1 and this is a server 2. So when you provide a resource in within region, AWS use default VPC. AWS ने हर रीजन में अपना एक VPC बनाया हुआ है. Got it guys? VPC का मतलब है नेटवर्क, अपना एक VPC यानी कि नेटवर्क बनाया हुआ है, and now your resources are connected with this network and it's communicate with each other. So when you deploy any resource in within region, it's connected with each other with the help of AWS default VPC network. तो स्पेलिंग मिस्टेक गाइस हो जाती है थोड़ा सा लिखने में. Got it the point? ये देखो कहाँ बना हुआ है, ये सेम रीजन है, ये डिफरेंट रीजन में. पेयरिंग करनी पड़ेगी. द पेयरिंग ऑलवेज इनेबल बिटवीन VPCs. एक VPC इसका भी होगा और एक VPC इस रीजन का भी होगा. तो पेयरिंग आप बिटवीन VPC ही करोगे. मैं सिर्फ नॉर्मल आपको रीजन बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि हम डिफरेंट रीजन्स को कम्युनिकेट करा सकते हैं, कैसे कराएं, विद इन रीजन है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एंड टू एंड. इज इट क्लियर एवरीवन? इतनी डिटेल से मैंने किसी बैच में नहीं बताया है ना? बताया हुआ है बस लिखा नहीं है. बस आज मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीजें लिख भी रहा हूँ.
Now guys, the next point is John. Hold करना guys. Point guys, is it a zone? What is zone? Now if I'm talking about a zone, each and every region use zone. So each and every region use multiple zone. Zone is a physical data center within region. And it's connected with each other. AWS default network सर्विस और AWS की डिफॉल्ट नेटवर्क सर्विस का नाम क्या है गाइस? VPC. AWS की डिफॉल्ट नेटवर्क सर्विस का नाम क्या है? VPC. तो हर रीजन में क्या है कि लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमने एक रीजन यूज करा है मुंबई रीजन, like this is Mumbai region is available. And in this region, each and every region, हर region की बात नहीं कर रहा, हम मुंबई region यूज करते हैं. Every region use a multiple data centers. This multiple data center is called a zone. So guys, Mumbai region का जो code है, its code is AP-SOUT South-1A. So like this is a John AP-SOUT, sorry, it's not a, it's only one. This is a Mumbai region code, and zone code is AP-SOUT South-1A. This is a zone A. Is it zone B? And it's zone C. So every region use a multiple zone, and these zones are interconnected with VPC. एक डिफॉल्ट VPC बना रहता है आपका. Got it my point? एक डिफॉल्ट आपका क्या है? नेटवर्क बना हुआ है. दिस इज अ VPC, एंड जितने भी जोन्स हैं आर कनेक्टेड विद दिस VPC. और सारे जोन्स आपके क्या हैं? इस डिफॉल्ट VPC से कनेक्टेड है. When you deploy any resource to any zone, it's connected with each other. क्यों कनेक्टेड है? पता लग गया? क्योंकि सारे के सारे जोन्स एक कॉमन VPC से, कॉमन नेटवर्क से कनेक्टेड है. इसलिए अगर आप अपना एक सर्वर जोन ए में डिप्लॉय करते हैं और सेकंड सर्वर डिप्लॉय इन जोन बी और जोन सी, इट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर्स. When you deploy any resource in any zone, either same zone and different zone, it's connected with each other. Got it my points? ये सभी क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे. क्यों? बिकॉज
the all zones VPC correct. used default VPC network of AWS CLOUD cloud. So either कि guys आप अपने दो सर्वर्स को डिप्लॉय करिए सेम रीजन में, or either you can deploy two servers in a two different locations. It's communicate with each other. अब आता है कि जोन का कॉन्सेप्ट क्यों है कि when you deploy resource, it's choice. If you deploy resource such as server, database, and other, choice is your. Deploy in single zone and multi zone. तो guys AWS नहीं कहता, AWS नहीं कहता कि आप मल्टी जोन डिप्लॉय करिए, वो आपकी चॉइस है कि आप अपनी रिसोर्स सिंगल लोकेशन पे डिप्लॉय करना चाहते हो या मल्टी लोकेशन पे डिप्लॉय करना चाहते हो. लाइक अगर आप सिंगल लोकेशन पे डिप्लॉय करेंगे तो लाइक आपने ये प्राइमरी सर्वर बनाया, दिस इज योर सेकेंडरी सर्वर. नाउ कि अगर आपका प्राइमरी सर्वर गोज डाउन, अगर आपका पहला सर्वर फर्स्ट सर्वर अगर डाउन जाता है तो सेकंड सर्वर आपको सपोर्ट दे देगा, यस और नो. बट अगर जोन डाउन हो जाता है तो थोड़ा डाउन हो जोन जाएगा. डाउन तो आपका सेकंड सर्वर प्राइमरी सर्वर दोनों ही चले गए. अगर मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूं कि प्राइमरी मैंने बनाया जोन बी में और सेकेंडरी बनाया जोन सी में, अब अगर मेरा सर्वर डाउन जाता है तब क्या होगा, फिर भी मेरा क्या है सेकंड जोन से मिलेगा, लेकिन अब मेरा यहाँ पे जोन भी जाता है फिर भी मेरी सर्विस एक्सेसिबल है. तो चॉइस इज यूर, यू कैन डिप्लॉय रिसोर्स इन अ सेम जोन और आइदर अ डिफरेंट जोन. गॉट इट एवरीवन? Is it clear guys? Yes sir. Any question sir. related Yes, to sir. this? Yes, तन्मय sir. क्लियर है? सचिन, तन्मय, सूर्यांश Yes, sir. क्लियर है? Now guys move for next. One more thing is a AMI. AMI stands for Amazon Machine Image. AMI stands for the other name of operating system. So what is AMI? So AMI क्या है guys? AMI is a operating system. It provide या फिर AWS provide only server operating systems, server AMI. It's not provide client AMI such as Windows 10, 7, etc. तो पहला कि AMI एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है एंड सर्वर जो है वो सॉरी AWS जो है वो हमें सर्वर OS देता है. It's not provide Windows 10, Windows 7 or Windows 11. This is my client operating system.
तो अगर आप क्लाउड पे कोई मशीन वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो और आप सोचे मैं विंडो 10 की वर्चुअल मशीन बना लूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन AWS। अजूरे आपको विंडो 10 का ऑप्शन भी देता है, बट AWS में आपको विंडो 10 की इमेज नहीं मिलेगी। द AWS प्रोवाइड ओनली ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। When you deploy any server in cloud, in AWS cloud, first select region, then zone, then select ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, AMI, सच एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट करते हो, चॉइस इज योर। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कौन सा सर्वर बना रहे हैं, विंडोज बेस्ड, लिनक्स बेस्ड, या मैक ओएस से रिलेटेड आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं, चॉइसेस योर। तो गाइस कि अगर आपको कोई भी सर्वर बनाने हैं, तो आपके ऊपर है, यू कैन सिलेक्ट विच AMI, यू कैन सिलेक्ट अ विंडोज AMI, select Windows AMI, either you select Linux AMI, अगर आप Linux के सर्वर्स बना रहे हैं तो Linux की AMI सेलेक्ट करेंगे। Linux में भी आपके ऊपर है कि आप Ubuntu Linux, Red Hat Linux या Amazon Linux या CentOS कौन सा, और either you use Mac OS। क्लियर गाइस? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंस्टेंस टाइप। गाइस इंस्टेंस टाइप्स क्या है? So Seema, what is the instance type? हाँ जी मैम। Lakshman, what is instance type? Pragya, what is instance type? Parul, जिसमें वॉल्यूम्स वगैरह आते हैं, वॉल्यूम्स सर आते हैं उसमें। सर लिस्ट ऑफ हार्डवेयर कहते हैं ना इंस्टेंस टाइप, लिस्ट ऑफ चलो हार्डवेयर होता है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, द इंस्टेंस टाइप इज अ लिस्ट ऑफ हार्डवेयर। तो गाइस पक्का है, आप लोगों की जॉब पक्का लगने वाली है क्लाउड पे। थैंक यू, कंटिन्यू करते हैं। तो पढ़ने के बावजूद, तभी तो मैंने दोबारा से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट करा है। अब डेली बेसिस पे आप लोगों की खिंचाई भी करनी है ना। तुम लोग बड़ा जॉब जॉब करते हैं, जॉब चाहिए जॉब चाहिए, अब जॉब लगवाता हूँ तुम सबकी। क्यों भाई? तो कल से पढ़ के आना है। तो इंस्टेंस टाइप्स का मतलब है हार्डवेयर। सिलेक्ट हार्डवेयर। AWS इंस्टेंस टाइप शो list of hardware such as CPU, RAM, storage,
तो गाइस कि अगर आप कोई भी सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो तो उस सर्वर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी तो आपको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर आप कितनी रैम लेना चाहते हो, कितने सीपीयूज, कितनी स्टोरेजेस, यस और नो गाइस। तो दिस इज द इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप का ऑप्शन आता है, दैट मीन्स वो वहां पे आपको लिस्ट दिखाएगा कि 2 GB रैम चाहिए, 4 GB चाहिए, 6 GB चाहिए, 8 GB चाहिए, 12 GB, 100, 2000 GB। वो आपको सारी लिस्ट रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना हार्डवेयर टाइप सिलेक्ट करना है। लाइक सेम एज कि अगर आप मार्केट जाते हो, यू कैन बाय अ लैपटॉप, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि 4 GB रैम लेनी है, 8 GB या 16 GB, i3 लेना है, i5 लेना है, i7 लेना है, यस और नो, एसएसडी लेनी है, एसएसडी लेनी है, ये सब आप सिलेक्ट करते हो और शॉपकीपर खुद से दे देता है, नहीं ना। तो गाइस शॉपकीपर अपनी मर्जी से वो बोलेगा चॉकलेट चाहिए, तो वो आप बताओगे उसका नाम और वो चॉकलेट दे देगा, ठीक है। बट आप जब हार्डवेयर लेने जाते हो ना, कोई भी लैपटॉप लेने जाओगे, तो आपको स्पेसिफिक अपनी कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ेगी। सेम एज कि अगर आप क्लाउड पे भी कोई भी सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे डिप्लॉय करना चाहते हो। स्पेसिफिक लाइक आपने सिलेक्ट कर लिया AWS, मैं आपसे पूछूंगा किस लोकेशन पे डिप्लॉय करना चाहते हो। लुक लाइक आपने बोल दिया लाइक का कि आई एम डिप्लॉय इन मुंबई रीजन। अब मुंबई के अंदर भी मैं मुंबई रीजन का मतलब है इंडिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि किस जोन में करना चाहते हो, यानी कि आप सिंगल जोन या मल्टी जोन, तो वो भी आपको ही बताना पड़ेगा। सेकंड, विच ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जो सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी आप ही बताओगे। देन मैं पूछूंगा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, आप जो सर्वर का हार्डवेयर रखना चाहते हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप जो सर्वर क्लाउड पे लेना चाहते हो, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है, पे एज यू गो सर्विस है, तो चार्जेस भी तो आपके उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आएंगे ना जो आप सिलेक्ट करोगे। तो सेम है कि सिलेक्ट हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब है AWS इंस्टेंस टाइप, सो द लिस्ट ऑफ द हार्डवेयर सच एज CPU, रैम और स्टोरेजेस। तो स्टूडेंट, स्पेशल वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, स्टूडेंट ऑलवेज select only T2 dot micro hardware type because it's free। आप कभी भी प्रैक्टिस करो तो आपको कौन सा हार्डवेयर टाइप सेलेक्ट करना है, T2 डॉट माइक्रो। इसके अलावा सारे के सारे हार्डवेयर टाइप्स चार्जेबल है। अगर आप इसके अलावा कोई भी हार्डवेयर टाइप सेलेक्ट करोगे तो उसके आपके चार्जेस लगेंगे, और इस पे लिख भी रहा होगा कि ये फ्री है, इसके नीचे लिखा होगा फ्री टायर। सेम है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नीचे भी वही ओएस यूज करना जिसके नीचे लिखा होगा फ्री टायर। बाकी मैं नहीं मना कर रहा, आप दूसरे भी ले सकते हो जिसके अकाउंट में पैसा हो। क्लियर गाइस? दिस इज द नेक्स्ट important part is a key pair। AWS used two types of key pair। One is .ppk extension, .ppk, and second is .pem। So AWS used two types of key pair, one is ppk and second is pem। With the help of key pair, access or generate इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब है सर्वर, VMs, वर्चुअल मशीन, पासवर्ड। की पेयर की हेल्प से क्या जनरेट होगा, पासवर्ड। की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड, की पेयर पासवर्ड नहीं है, की पेयर की हेल्प से क्या होगा, पासवर्ड जनरेट होगा। एडमिन यूज्ड सेम की पेयर with
मल्टीपल सर्वर, चॉइस इज यूर कि आप सेम की पेयर ही मल्टीपल सर्वर के साथ भी अटैच कर सकते हो और आइदर डिफरेंट भी कर सकते हो, बट एवरी सर्वर password generated by key admin use same key pair with the multiple server and every server password is different. जरूरी नहीं है कि अगर आपने पहला की पेयर अटैच करा लाइक सर्वर 1 के साथ, तो सर्वर 1 का पासवर्ड AHD हो गया। अब आपने सेम की पेयर अटैच कर दिया सर्वर 2 के साथ, तो सर्वर 2 का पासवर्ड AHD नहीं आएगा, वो कोई अदर पासवर्ड जनरेट करेगा। So it's your choice, you can create a common key pair or either you create a different key pair. If you deploy Linux server create dot ppk या attach dot ppk extension key pair. So guys, Linux या Mac की मैं बात करता हूं, तो आपको डॉट ppk एक्सटेंशन की पेयर की यूज करना पड़ेगा अगर आप Linux के सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं। और इफ यू डिप्लॉय और क्रिएट clear the concept ppk clear the concept guys, what is cloud, Yes, sir. what is reason, what is zone, what is AMI, what is instance type, what is key pair. Now the next point is security group. So फोटो मत खींचो, पूरी वीडियो दे दूंगा, पढ़ना तो फिर भी नहीं है। और तुम लोग भी लिखे जा रहे हो, कल पूछता हूँ तुम लोगों से भी। उसका स्पेक्स ले ले। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट आपका आता है की पेयर के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है सिक्योरिटी ग्रुप। तो security groups work as a firewall with the help of security groups allow protocol and port number to specific location, IP address और anywhere। तो गाइस देखिए, आप अगर क्लाउड पे कोई भी सर्विस अलाउ करते हो,
तो हर सर्विस का एक सेट ऑफ रूल्स है। प्रोटोकॉल्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। हर सर्विस अपना एक प्रोटोकॉल यूज करती है, यानी कि हर इंसान के काम करने का एक वे है, वो सेम नहीं होगा। इसी तरीके से कि हमारे पास टोटल जो प्रोटोकॉल रेंज है, द रेंज ऑफ प्रोटोकॉल्स is 1 to 65,536। टोटल हमारे पास इतने प्रोटोकॉल्स हैं और हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक यूज्ड है। अब आपकी कंपनी कौन सा प्रोटोकॉल किस सर्विस के लिए यूज कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक मैं कहता हूं कि मेरा यहां से बाहर से एग्जिट जाने का जो प्रोटोकॉल है वो 1000 नंबर है। अगर मेरी आईडी प्रोटोकॉल आईडी 1000 है और अगर वो 1000 प्रोटोकॉल आईडी मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड नहीं करी तो मैं एग्जिट नहीं हो सकता। दूसरा कि मेरे को किस लोकेशन पे जाना है। अगर मेरे आगे रूल लगा हुआ है एवरीवन, तो मैं हर किसी के पास जा सकता हूं। लेकिन अगर मेरे रूल के आगे स्पेसिफिक आईपी एड ऑन कर दिया गया है तो मैं सिर्फ उसी आईपी से ही कम्युनिकेट करूंगा और किसी के साथ कम्युनिकेशन मेरा नहीं होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फायरवॉल कि सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल with the help of security group allow protocol and port number to a specific location of IP and address or anywhere। so simple सा है guys कि like this is a server, ये एक सर्वर है और सपोज करो इस सर्वर पे आपकी तीन सर्विसेज हैं। पहली सर्विसेज है वेबसाइट, आपकी वेबसाइट चल रही है। दूसरा आपके इस पर एसक्यूएल भी चल रहा है, एसक्यूएल सर्वर भी चल रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? नाउ दिस इज अ यूजर्स। आउटसाइड वैन के अंदर ये यूजर्स बैठे हुए हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, लुक लाइक अ यू। आप सभी यूजर्स ही हैं जो इसको एक्सेस करना चाहते हैं। लाइक यूजर 1 is the IP of user 1 is 1.1.1.1. Is it user 2? The IP of user 2 is 2.2.2.2 and this is the user 3. The IP of user 3 is 3.3.3.3. अब guys, these all users are connected with internet. ये सारे के सारे यूजर्स किसके साथ कनेक्टेड हैं? इंटरनेट के थ्रू। The all users are connected with internet. Now कि अब यहां पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप का। यहां पर आता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। The security group use two types of rule. Security groups के दो types के rule हैं. So like a security group use two types of rule. दो टाइप्स के रूल सिक्योरिटी ग्रुप यूज करते हैं। पहला इनबाउंड रूल and second outbound rule. Got it? The outbound rules का मतलब है the all traffic is allowed by default. So outbound rule एक बना हुआ होता है कि आउटबाउंड का मतलब है कि बाहर से कोई भी यहां पर एंट्री कर सकता है, क्योंकि आउटबाउंड रूल्स के अंदर हमने क्या करा हुआ है, दिस इज माय आउटबाउंड रूल। आउटबाउंड रूल्स के अंदर हमने यहां पे पहले ही सेट करा हुआ है द ऑल ट्रैफिक इज अलाउ। चॉइस इज योर, आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यानी कि यूजर 1, 2 एंड 3 तीनों की रिक्वेस्ट मेरी यहां पर आ सकती है।
नाउ यू क्रिएट इनबाउंड रूल्स। हमें कौन से रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे? इनबाउंड रूल्स। एडमिन क्रिएट इनबाउंड रूल, और एडमिन को इनबाउंड रूल क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास इतनी सारी सर्विसेज हैं, वो कौन सी सर्विस को अलाउ करना चाहता है? यू नो कि वेबसाइट जो आपकी एक्सेस होती है वो होती है पोर्ट नंबर 80 एंड 443, यानी कि HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल से। और आपका SQL सर्वर जो यूज होता है वो एक्सेस होता है 3306। SQL का जो पोर्ट नंबर है, SQL प्रोटोकॉल है, उसका जो पोर्ट नंबर है 3306। मैं चाहता हूं कि सपोज कि मेरा जो यूजर 2 है, इट इज ए SQL एडमिन। ये मेरा कौन है? SQL एडमिन है। और मैं चाहता हूं कि इट्स माय सर्वर एडमिन। ये मेरा क्या है? सर्वर एडमिन है। अब सर्वर एडमिन है, SQL एडमिन है, तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा? आई एम क्रिएट अ रूल। मैं इनबाउंड रूल क्रिएट करूंगा और मैंने पहला रूल सिलेक्ट करा HTTP, प्रोटोकॉल नंबर 80, प्रोटोकॉल टाइप TCP, एक्शन में मैंने दे दिया एनीवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीवेयर? यानी कि अगर मैंने पोर्ट नंबर 80 के आगे एनीवेयर लिख दिया, दैट मीन दिस सर्विस अलाउ फॉर एवरीवन, यानी कि यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3 तीनों ही एक्सेस कर सकता है। यानी कि अगर मैंने पोर्ट नंबर 80 के आगे एनीवेयर ऐड ऑन करा, दैट मींस कि ये तीनों क्या चीज एक्सेस कर सकते हैं? वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ। गॉट इट माय पॉइंट? नाउ दूसरा रूल मैंने बनाया HTTP 443 TCP, क्या, और इसको भी मैं दे रहा हूं एनीवेयर, यानी कि मैंने वेबसाइट्स के दोनों प्रोटोकॉल्स को एनीवेयर कर दिया। नाउ मैं अब एड ऑन कर रहा हूं वन मोर रूल, इज लाइक SQL पोर्ट नंबर 3306, टाइप प्रोटोकॉल TCP या UDP, और इस बार मैं यहां पे दे रहा हूं कस्टम। अब एनीवेयर की जगह ना सेलेक्ट करके मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूं? कस्टम, और कस्टम के आगे मैंने दे दिया 2.2.2.2। दैट मीन दिस प्रोटोकॉल अलाउड ओनली फॉर 2.2.2, यानी कि 2.2 के बाद अब कौन कितनी सर्विसेज अलाउड हो गई? वेबसाइट भी वो एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है? एनीवेयर करा हुआ है। एज वेल एज वो SQL की सर्विस भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको एक और स्पेसिफिक उसके IP पर एक और प्रोटोकॉल एड ऑन कर दिया है। नाउ द सिस्टम एडमिन, लाइक का सिस्टम एडमिन को मैं दे देता हूं RDP, और यह मैं दे देता हूं ऑल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक कस्टम 3.3.3.3। ऑल ट्रैफिक का मतलब है कि मैंने 3.3 के लिए सारे के सारे प्रोटोकॉल अलाउ कर दिया। 1,65,536 ऑल प्रोटोकॉल्स अलाउड फॉर द सिस्टम एडमिन। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट? सब प्लीज एक बार रिपीट कीजिएगा ये वेबसाइट वाली जी चीज सर, है। जी सर। देखिए सिंपल सा है कि मैं सेट ऑफ रूल्स क्रिएट कर रहा हूं कि मुझे अपने क्लाउड की सर्विस को कौन एक्सेस करे। तो लाइक मेरी क्लाउड की सर्विस में वेबसाइट है, SQL सर्वर है, या एनी अदर काफी सारी सर्विसेज हो सकती है। मैंने क्या करा कि वेबसाइट आपको पता है HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल से होती है, और वेबसाइट में चाहता हूं वर्ल्ड वाइड हर जगह एक्सेस हो मेरी। कोई स्पेसिफिक यूजर के लिए तो मैं वेबसाइट नहीं बनाता ना, मैं तो चाहता हूं वेबसाइट अगर आपकी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है तो कोई भी एक्सेस कर सके। तो मैंने क्या करा, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो वेबसाइट जो हमारी एक्सेस होती है वो पोर्ट नंबर या तो 80 से होती है या 8443 से, यानी कि प्रोटोकॉल HTTP या HTTPS से एक्सेस होती है। आप कभी भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उससे पहले देखना है ये प्रोटोकॉल्स नेम लिखे आते हैं। तो उनके जो पोर्ट नंबर है 80 है, जिनके आगे मैंने एड ऑन कर दिया एनीवेयर। गॉट इन माय पॉइंट? क्या चीज एड ऑन कर दिया? एनीवेयर।
अब मैं चाहता हूं कि एसक्यूएल को सिर्फ एसक्यूएल एडमिन ही एक्सेस करे, जो एसक्यूएल पे काम कर रहा है वही तो एक्सेस करके काम करेगा। मैंने कहा कि यूजर 2 जो है वो मेरा एसक्यूएल एडमिन है, उसका काम है डेटाबेस को मैनेज करने का। तो मैंने क्या करा, आई एम अलाउड द एसक्यूएल प्रोटोकॉल फॉर ओनली 2.2.2.2 यूजर। तो मैंने क्या करा, प्रोटोकॉल सिलेक्ट करा, उसका पोर्ट नंबर सिलेक्ट करा, प्रोटोकॉल टाइप सिलेक्ट करी और कस्टमाइज। सो गाइस कभी भी आप कस्टम ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो कस्टम ऑप्शन का मतलब है आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेस देना चाहते हो। तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है द सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर टू स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस। आप किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को भी राइट दे सकते हैं और एनीवेयर, और आप एनीवेयर भी कर सकते हो। तो सेम ही करा है कि मैंने यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स को दिया है एनीवेयर, बट मैं चाहता हूं कि सब लोग तो एसक्यूएल सर्वर पे काम नहीं करेंगे ना, स्पेसिफिक यूजर काम करेगा। तो स्पेसिफिक यूजर को मैंने दे दिया 2.2 कि आपके लिए एसक्यूएल के राइट्स हैं, बट जो सिस्टम एडमिन है, आपकी कंपनी का एडमिन है या जो सर्वर एडमिन है, उसके पास तो सारे राइट्स होने चाहिए। यस और नो Yes, sir. एवरीवन? तो उसके लिए Yes, मैंने sir. कर दिया ऑल ट्रैफिक, कि वो उस सर्वर के सारे रूल अलाउड है। नाउ गाइड्स कि अगर आपको ऑल ट्रैफिक के अंदर वैसे सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लिनक्स की मशीन यूज करते हो, व्हेन यू यूज अ लिनक्स, तो लिनक्स की मशीन का कंसोल एक्सेस करने के लिए आपको एसएसएच प्रोटोकॉल अलाउड करना पड़ेगा। तो एसएसएच, और मैं यहां पे कर देता हूं एनीवेयर। अगर मैंने एनीवेयर कर दिया तो यानी कि लिनक्स की मशीन के कंसोल को कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकता है। और अगर मैंने स्पेसिफिक आईपी एड ऑन कर दिया तो ओनली दिस यूजर। सेम एज विंडोज की मशीन को एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है आरडीपी प्रोटोकॉल, यानी कि आप क्लाउड की मशीन को एक्सेस कैसे करोगे, क्लाउड की मशीन को एक्सेस करने के लिए, उस पर काम करने के लिए उसका कंसोल भी तो चाहिए। लाइक आप टीम व्यूअर से ही क्या करते हो, एनीडेस्क से किसी की मशीन एक्सेस करते हो तो उसकी आईडी लेते हो ना, तभी एक्सेस कर पाते हो। सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लिनक्स की मशीन या अपना कोई भी सर्वर क्लाउड से अपना एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए लिनक्स के लिए एसएसएच प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड और मैंडेटरी। कि लिनक्स को एक्सेस करने के लिए एसएसएच प्रोटोकॉल आपका क्या होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। एज वेल एज अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो विंडोज के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए, आरडीपी। और एनीवेयर अगर मैं कर देता हूं तो हर कोई कहीं भी किसी भी लोकेशन पे सर्वर को एक्सेस कर सकता है। अगर मैं स्पेसिफिक यूजर दे देता हूं तो ओनली स्पेसिफिक यूजर ही क्या कर पाएगा, इसको एक्सेस कर पाएगा। तो यहां लिख भी देता हूं मैं, when create Linux server allow SSH protocol in security group and create Windows server allow RDP in security group। So guys, जिनका सेकंड टाइम रिवीजन हो रहा है, मे बी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो दोबारा में। Got it the point everyone? The concept of security group. जी सर। Yes, sir. जी Sir, सर। sir, क्या suppose we have बताइए, to give the permission more than one user for SQL server. दोबारा से So यूजर how can बनाइए we? और आईपी ऐड कर दीजिए, दोबारा से रूल बनाइए, आईपी ऐड कर दीजिए। सर स्पेसिफिक एक टाइम में एक ही यूजर को अपन परमिट कर सकते हैं, मतलब सपोज मोर देन वन है तो सारी आईपी आप मेंशन करनी नेटवर्क पड़ेगी वहां आईपी पे। दे दीजिए, सबनेट दे दीजिए, अगर आपने ग्रुपिंग करी हुई है। यहाँ पर आईपी के बेस पे हो रहा है, यूजर के बेस पे नहीं हो रहा। ओके गॉट सर, इट? आप सपोज मोर देन आपके 20 आईपी यू करने हैं, 20 कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं, तो 20 कैंडिडेट यस का यस सबनेट भी तो होगा आपका। या सबनेट मास्क भी होता है आईपी के साथ, सीआईडीआर बिड। ओके यस और नो?
सर उसके बाद CIDR बिट्स भी होती हैं आपकी, तो सर CIDR भी। बिट्स से परमिट कर सकते अभी हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल भी हैं, इट्स नॉट ओनली थ्योरी। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जब मैं प्रैक्टिकल डिप्लॉय करूंगा तो ये सारी चीजें वहां पर ऑप्शंस आएंगे। सो आप लोग उस समय ना पूछें, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको अभी बता दिया है। सॉरी 443 आपका HTTPS के लिए प्रोटोकॉल है ना? हाँ, अगर सॉरी HTTPS आएगा यहाँ पर यार, मैंने बोला ना प्रोटोकॉल के बेस पे दो, मैंने बोला ना मेरे को टाइपिंग करने में, पढ़ाते वक्त हैंड टू हैंड लिखने में थोड़ा सा हो जाता है। इट्स HTTPS। SSH फॉर लिनक्स लिख दिया है मैंने नीचे रेड कलर में, देखो। क्लियर गाइस? नाउ भी है कि जब यहाँ सर पे मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए थे, ये की पॉइंट ही मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। नाउ व्हाट इज रीजन, व्हाट इज जोन, what is IAM, what is key pair, what is security group, VPC is a networking and instance type. Now how to deploy server. अब हम अपने क्लाउड पे एक सर्वर डिप्लॉय करते हैं, हाउ टू डिप्लॉय सर्वर। तो गाइस डिप्लॉय सर्वर डिप्लॉय करने के लिए सारी चीजें हम बना लेते हैं पहले, देन क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं। तो फर्स्ट यू लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल। क्लाउड पोर्टल पे अकाउंट सभी का बना हुआ है, ठीक है, सभी को बनाना आता है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल एंड वन बाय वन जितनी चीजें मैंने बताई हैं, पहले मैं की पेयर क्रिएट करूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसके बाद में सर्वर। सो चॉइस इज योर कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप सर्वर बनाते वक्त भी सिलेक्ट कर सकते हो या आप पहले भी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं पहले क्रिएट करूंगा सर्वर डिप्लॉय वक्त, अब मैं वहां पे ऑप्शन लूंगा एग्जिस्टिंग का। सिलेक्ट रूट यूजर, सिलेक्ट आप लोग भी लेट हो रहे होंगे। चलिए गाइस, हम लोग ना सर्वर कल ही क्रिएट करेंगे, मेरा अकाउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है गाइस? थ्योरेटिकल सारा हो गया, कल हम एक बार और थोड़ा सा 10 मिनट में इसका ब्रीफ देके फिर हम डिप्लॉय करेंगे। क्लियर एवरीवन? इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू?